नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज का टॉपिक डिसऑनर ऑफ बिल पर MCQs रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द ड्यू डेट? आफ्टर डेट बिल है, 1 मार्च को ड्रॉ करा गया, 90 डे का पीरियड है। ठीक है, आफ्टर डेट 90 डेज। देखिए 1 मार्च को ड्रॉ हुआ, 30 डेज मार्च के, 30 डेज अप्रैल के, 30 डेज मई के, 90 डेज पूरे हो गए। इट मीन्स 30th मई पे हम पहुंच गए, 3 डेज का ग्रेस पीरियड, 31st में, 1st एंड 2nd जून। देयरफॉर द ड्यू डेट विल बी बी। इफ बिल्स ड्यू डेट फॉल्स ऑन अ पब्लिक हॉलीडे, अगर कोई पब्लिक हॉलीडे आता है लाइक रिपब्लिक डे, व्हाट हैपेंस टू द ड्यू डेट? इट शिफ्ट्स टू द previous working day. Who is primarily liable to pay bill of exchange if it is accepted? Accepted है तो liability acceptor का होगा। What is the consequence if the holder fails to present a bill for payment on the due date? अगर due date पे payment नहीं होता तो क्या consequence रहेगा? Acceptor is not liable, no. Drawer and endorsers are not liable, yes. The bill is automatically protested, notary must be informed. Okay, drawers and endorsers की कोई liability नहीं है। What is the key difference between noting and protest in the context of dishonored bill? Noting and protest में क्या difference रहेगा? ठीक है, noting is a formal certificate, protest is a record. Yes, noting is mandatory, protest no. Noting is record, protest is a formal certificate. Yes, noting is a formal certificate, protest is a record. No, noting is not a formal certificate. It is wrong. Noting applies to foreign bills, protest to inland bills. No. Correct option is C. What is the due date for an after date bill? 15th March, 19 day term. Okay, 15th March, 90 day. 16 days मार्च के, 30 डे अप्रैल के, 31 डे मई के, 13 डेज जून के। हम पहुंच गए 13th जून पे। 3 डेज का रहेगा ग्रेस पीरियड, देयरफॉर 16th जून विल बी द ड्यू डेट। विच स्टेटमेंट अबाउट प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस इज करेक्ट? प्रेजेंटमेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल बिल्स, नो। ऑप्शनल फॉर आफ्टर साइट, नो। इट इज मैंडेटरी फॉर आफ्टर साइट बिल, यस। इट इज नेवर रिक्वायर्ड, C option. When does dishonor by non-acceptance typically occur? Dishonor कब होता है? When acceptor fails to pay on due date, yes. When the drawee refuses to accept the bill. Non-acceptance के केस में तो ये होता है when the acceptor fails to pay on due date, ये dishonor by non-payment होगा। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? Non-acceptance का। Therefore B, correct option is B. What is the primary difference between noting and protest? Noting and protest में क्या difference है? Noting एक रिकॉर्ड करवाना होता है, for protest में एक सर्टिफिकेट लिया जाता है। ठीक है, noting is for foreign, protest is for no. Noting is more expensive than protest, no. Protest provides strong legal evidence, yes. Protest तो एक वो नोटरी खुद इशू करता है सर्टिफिकेट, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। If bills calculated due date falls on 31st November, what becomes the actual due date? 31st November पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा? लास्ट वर्किंग डे ऑफ नवंबर। दोस्तों याद रखना, इमीडिएटली 30th नवंबर को क्लिक नहीं करना, जो लास्ट वर्किंग डे होगा। हो सकता है 30th छुट्टी हो जाए, 29th छुट्टी हो जाए, तो जो लास्ट वर्किंग डे होगा। सी। What is the grace period typically allowed on an after date bill? After date bill हो चाहे कोई भी बिल हो, सॉरी आफ्टर डेट और आफ्टर साइट, 3 डेज का ग्रेस पीरियड ही रहेगा। ठीक है, एट साइट और डिमांड बिल्स के केस में रिक्वायर्ड नहीं है। When is presentment for acceptance mandatory? Presentment for acceptance कब जरूरी है? आफ्टर साइट के केस में। If the due date of bill falls on a public holiday, then the payment must be on public holiday तो एक दिन पहला, previous working day. Who is primarily liable if the bill is accepted? अगर bill accept हो गया तो acceptor की responsibility. Which document is issued after noting by notary to formally certify dishonor? It is a protest certificate जो कि notary के द्वारा issue किया जाता है।
नोटिंग मेयरली एक रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसेस है. प्रोटेस्ट सर्टिफिकेट इज अ फॉर्मल सर्टिफिकेट. What happens to the liability of the drawer and endorses if the holder fails to present the bill for payment on the due date? Yes. दोस्तों अगर तो डिसऑनर होता है तो ड्रॉअर एंड इंडोर्सर की लाइबिलिटी रहती है. बट अगर जो होल्डर है वो प्रेजेंट ही ना करे तो होल्डर एंड ड्रॉअर एंड इंडोर्सर्स की कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी. दे आर नॉट लाइबल फॉर डिसऑनर. For which type of bill is noting by notary public mandatory under Indian law? नोटिंग किस कब मैंडेटरी है? इट इज वैसे तो ऑप्शनल है, बट अगर कोई फॉरेन बिल है तो उसमें नोटिंग एंड प्रोटेस्ट मैंडेटरी है. ओके. इफ अ बिल्स ड्यू डेट इज 15th अगस्त जबकि पब्लिक हॉलीडे है एंड 14th अगस्त इज अ वर्किंग डे, व्हाट इज द एक्चुअल डेट? अगर पब्लिक हॉलीडे है तो एक दिन पहले, इट इज 14th. Under which circumstance does an acceptor's liability continue even after dishonor? डिसऑनर के बाद कौन से सर्कमस्टांस में एक्सेप्टर की लाइबिलिटी कंटिन्यू रहती है? बोथ अंडर एनआईए. एनआईए के अंदर अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो वो लाइबल है. अगर एक्सेप्ट नहीं करा बट लाइबिलिटी है तो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर उस पर केस कर सकते हैं. व्हाट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द नोटिंग प्रोसेस व्हेन अ बिल इज डिसऑनर्ड? नोटिंग में क्या क्या आएगा? डेट, रीजन, ड्रॉइज रिस्पॉन्स, नोटरी चार्जेस. यस. ओनली द डेट ऑफ डिसऑनर? नो. ओनली द नोटरी सिग्नेचर? नो. जस्ट द बिल अमाउंट. ये सारी डिटेल्स आएंगी. फॉर एन आफ्टर साइट बिल एक्सेप्टेड ऑन 10th January, आफ्टर साइट बिल है 10th January with 60 day mid term, what is the due date? 10th January plus 60 days plus 3 day grace period. देखिए 10th January, 21 डेज जनवरी के रह गए, 28 फरवरी के, 11th मार्च के. 60 डेज ये पूरे हो गए, हम पहुंच गए 11th मार्च में. 3 डे का ग्रेस पीरियड आ गया, हम आ गए 14th मार्च में. Therefore the correct option is 14th March. Under what condition is presentment for acceptance mandatory for a bill of exchange? Presentment किस केस में जरूरी होगा? For acceptance for the after site bill. What happens if bill's due date is 31st November, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो लास्ट वर्किंग डे ऑफ द नवंबर. द ड्यू डेट शिफ्ट्स टू द लास्ट वर्किंग डे ऑफ नवंबर. What is the role of notary public when his bill is dishonored? Notary public का क्या रोल रहता है? To record the dishonor and issue the protest if requested. Yes. When is a notice of dishonor mandatory to hold the drawer and endorsers liable? Notice of dishonor कब mandatory रहेगा? When the bill is not accepted? Yes. When the acceptor pays on time? No. When the holder fails to present the bill? No. When the bill is protested? No. When the bill is not accepted. What does the term maturity of bill exchange refer to? The date on which bill is drawn? No. Accepted? No. Payment is due. This is also no. C option. Who is primarily liable to make the payment in case of accepted bill of exchange? It is an acceptor. Presentment for acceptance is required in which of the following cases? Presentment किस केस में जरूरी होता है? In all type of bill? No. Payable on demand? No. Payable after sight? Yes. Maturity after sight के केस में acceptance के बाद से शुरू होगा. When the bill is payable after date? No. Presentment सिर्फ C. What is the effect if bill of exchange is dishonored by non-payment? Non-payment के साथ dishonor हुआ तो क्या होगा? The holder must accept partial payment. No. Dishonor ही हो गया. The bill becomes void. No. The holder can sue all parties. The acceptor is discharged. No. C option. What is the purpose of noting a dishonored bill? Purpose क्या है? एक evidence है, ठीक है? To create a legal evidence of dishonor. बाकी ऑप्शन देखते हैं. टू कैंसिल द बिल? नो. टू एक्सटेंड द ड्यू डेट? नो. टू रिड्यूस द लायबिलिटी ऑफ एक्सेप्टर? नो. सी ऑप्शन इज करेक्ट. Which of the following is not a valid reason for presentment for payment to be excused? Presentment of payment को अगर नहीं करा गया तो उसको माफ किया जाए, इसमें से कौन सा वैलिड रीजन नहीं है? एक्सेप्टर हैज डाइड, ये तो वैलिड रीजन ही है, तभी प्रेजेंटमेंट नहीं हो पाएगा. एक्सेप्टर कैन नॉट बी फाउंड, ये भी वैलिड है. एक्सेप्टर हैज डेलिबरेटेड अवॉइडेड पेमेंट, ये भी वैलिड है. होल्डर फॉरगॉट टू प्रेजेंट द बिल, यस, ये वैलिड नहीं है, ठीक है. देयरफॉर डी ऑप्शन.
in case of dishonored bill who bears the noting charge. दोस्तों पेमेंट तो नोटिंग चार्जेस की करेगा जो होल्डर है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आएगी? जो एक्सेप्टर है, ठीक है। पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसऑनर, सी डी। What happens if bill payable after sight is not presented for acceptance? अगर आफ्टर साइट बिल को प्रेजेंट करना मैंडेटरी था, बट अगर प्रेजेंट ही नहीं करा गया, बिल बिकम्स इनवैलिड, नो। बिल तो वैलिड रहेगा। द बिल इज कंसिडर्ड एक्सेप्टेड ऑटोमेटिकली, नो। बिल मेच्योरिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यस। मेच्योरिटी ही नहीं बन पाएगी अगर एक्सेप्टेंस नहीं हुआ तो। द ड्रॉअर बिकम्स लायबल इमीडिएटली, नो। सी। Which party can protest a dishonored bill through a notary public? Holder, of course, ठीक है, holder of the bill. When is bill considered dishonored? By non-acceptance. Non-acceptance के case में, when the drawee refuses to accept the bill when presented, yes. When the bill is lost, no. When the drawer cancels the bill, when the acceptor dies before this. A option. What is the legal status of protest in case of dishonor of फॉरेन बिल? फॉरेन बिल के केस में ऑप्शनल, नो। मैंडेटरी, यस। प्रोटेस्ट एंड नोटिंग मैंडेटरी। कैन बी स्किप्ड, नो। नॉट एप्लीकेबल, नो। बी ऑप्शन। What happens if bill is not presented for payment on the due date? अगर ड्यू डेट पे नहीं प्रेजेंट करा गया, the bill becomes invalid, वैलिड रहेगा। acceptor liability increases, वो तो उतनी रहेगी। the drawer and endorses are discharged, yes. ड्रॉअर एंड इंडोर्सेस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो बिल होल्डर है वो बाद में इनसे पैसा नहीं क्लेम करेगा, बिकॉज उसने प्रेजेंट ही नहीं करा। सी ऑप्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट नॉट नेसेसरी? प्रेजेंटमेंट किस केस में नेसेसरी नहीं है? व्हेन द एक्सेप्टर इज बैंकरप्ट, when the acceptor lives in another state, when the due date falls on a public holiday, when the holder is traveling. प्रेजेंटमेंट अगर एक्सेप्टर बैंकरप्ट हो जाए तो एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। व्हेन द एक्सेप्टर इज बैंकरप्ट। इफ द मैच्योरिटी डेट फॉल्स ऑन 18th मार्च व्हिच इज डिक्लेयर्ड इमरजेंसी हॉलीडे, इमरजेंसी है तो नेक्स्ट डे रहेगा, ठीक है। व्हाट इज द एक्चुअल ड्यू डेट? 18th मार्च के बाद 19th मार्च। दोस्तों अगर इमरजेंसी है तो नेक्स्ट डे, अगर पब्लिक हॉलीडे है, कोई गस्टेड हॉलीडे है तो प्रीवियस डे, या संडे भी है तो प्रीवियस डे, ओके। इमरजेंसी के केस में नेक्स्ट डे हो जाता है, 19th मार्च। अ बिल मेच्योर ऑन 26 जनवरी, पब्लिक हॉलीडे है, पिछला दिन हो जाएगा, पिछला वर्किंग डे, इमीडिएटली पिछला नहीं। 25 जनवरी अगर ये वर्किंग हुआ तो, अदरवाइज 24th हो जाएगा, 23rd हो जाएगा, इस तरीके से। What does day of grace refer to in context of bill of exchange? Grace period क्या होता है? Extra days added for after due date for bill. Yes, extra days for due date. If a bill is dishonored and noting is done, who prepares the protest certificate? Protest certificate notary public देता है. Whose responsibility is to present the bill of exchange for acceptance or payment? जो बिल का होल्डर होगा उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Okay. In case of non-acceptance, how soon must the bill be presented for noting? अगर नॉन एक्सेप्टेंस हो गया तो उसी दिन या नेक्स्ट डे, इमीडिएटली और नेक्स्ट वर्किंग डे, ये ऑप्शन ठीक है. अगर विद इन 30 डेज करा आपने, वो भी रॉन्ग है. इमीडिएटली उसी दिन करो या अगले वर्किंग डे पे करो. बी, हु इज सेकेंडरी लायबल ऑन अ बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर डिसऑनर? डिसऑनर के केस में प्राइमरी लाइबिलिटी तो एक्सेप्टर की रहेगी, सेकेंडरी रहेगी आपकी ड्रॉअर एंड इंडोर्सर्स की. एक्सेप्टर की प्राइमरी लाइबिलिटी है सबसे पहले, नोटरी पब्लिक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, होल्डर की तो है ही नहीं है, वो तो पैसे क्लेम कर रहा है. ड्रॉअर एंड इंडोर्सर्स की सेकेंडरी लाइबिलिटी रहेगी. व्हेन डज अ बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम्स ओवरड्यू? ड्यू होगा जब 3 डेज का ग्रेस पीरियड भी कंसीडर हो जाएगा, उसके बाद भी पेमेंट ना होगा तो ओवरड्यू हो गया. आफ्टर 3 डेज ऑफ ग्रेस हैव पास्ड. Which party is liable first when a bill is dishonored by non-acceptance? Non-acceptance के केस में सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? Non-acceptance, एक्सेप्टर तो है ही नहीं है, ठीक है. इट इज ड्रॉअर. ओके, यस, बट इसमें नोटिस देना पड़ेगा. ड्यू, ड्रॉअर इज रिस्पॉन्सिबल. प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट मस्ट बी मेड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग केस? पेमेंट कब प्रेजेंट करने की? ऑन एनी पब्लिक हॉलीडे? नहीं. On any day, any time? नहीं. On a business day during business hour? Yes. Presentment तभी करनी है जब business day है और business hour है. Before the bill is signed? No. C option. If a bill is noted but not protested, what is the legal effect? Noting तो करवा दी, legal evidence तो बन गया,
ठीक है, noting alone can serve as a legal evidence. Yes. It becomes void. No. It is not valid. No. Acceptor is discharged. No. Acceptor की responsibility रहेगी. C option. A bill dated 10th March payable 2 months after date matures on 10th March की है, उसके बाद कब है 10th March 2 months हो गए, 10th April 10th May. ओके, बट 10th May आ गया, 3 days का ग्रेस पीरियड. 11th 12th 13th May will be the correct option. दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसी के साथ ही हमारे 50 MCQs डिसऑनर ऑफ विल पे कंप्लीट होते हैं. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, इसको काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. हमारे और भी वीडियोस इसी तरह आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जिसमें पहले थ्योरी होगी, फिर उसके बाद MCQs होंगे. तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए. थैंक यू.